Hi everyone, welcome to GC Shine Company's YouTube channel. Today we are going to discuss a very interesting topic that is called business projection. And if you are someone who is really interested into business, then this topic is for you. This video is for educational and training purpose of us article at GC Shine Company. So basically business project. What do you understand of business projection? आपको पता है business projection क्या है? If not, then it is very simple. Business projection is a future estimate of business revenue, profits and expenses. It is a data-driven projection and not a guesswork or assumption. It is a roadmap and a guide for business planning and decision making. Next step is why business projection matters. कि हम business projection क्यों कर रहे हैं? Business projection is mainly for four purposes. So first is planning and budgeting. Without a proper planning and budget, no business can run successfully. Second is it is a data-driven decision. Data-driven decision कैसे होगा कि अगर आपके पास अपने बिजनेस का सारा डेटा है, सेल्स, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, अब तक का आपके पास एक प्रॉपर डेटा मेंटेन्ड है, उसके बेसिस पे आप फ्यूचर प्रोजेक्ट कर रहे हो कि आपका आने वाले ईयर में क्या कितना ग्रोथ होगा, कितना सेल्स इंप्रूव होगा, कितना प्रॉफिट बढ़ेगा. सो इट इज अ प्रॉपर डेटा ड्रिवन डिसीजन. Third one is first it is helpful in securing funds. Securing funds is like we take loan from bank and we pitch investors for funding. Banks do not grant you a loan just on the basis that your business has made a good profit this year. Bank want a proper projection कि आप फ्यूचर में भी आपका बिजनेस में ग्रोथ पोटेंशियल हो और आप इंटरेस्ट और लोन रिपेमेंट कर पाओ. थर्ड एंड द इन्वेस्टर फंडिंग इस बेस पे होता है कि इन्वेस्टर्स नीड ए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. इफ योर बिजनेस इज ग्रोइंग देन इन्वेस्टर विल फील सिक्योर दैट देयर इन्वेस्टमेंट विल प्रोक्योर देम रिटर्न्स. द लास्ट वे इज टू ट्रैक परफॉर्मेंस. बिजनेस प्रोजेक्शन सिर्फ एक ऐसी एक्टिविटी नहीं है कि आप आगे का बता दो कि इतना इतना हम सेल्स करने वाले हैं. आपको एक ट्रैक और अकाउंटेबिलिटी भी रखनी रहेगी कि आपने जितना फोकस किया था और जितना आपका एक्चुअल हुआ है वो आप कंपेयर करोगे. सपोज कि आपने फोकस किया था कि 100 करोड़ का रेवेन्यू आप नेक्स्ट ईयर करोगे और आप जब वो ईयर में आया बट आपका एक्चुअल रेवेन्यू हुआ था सपोज 90 करोड़, तो वो 10 करोड़ का गैप क्यों रह गया. आप उसके रीज़न उसको आइडेंटिफाई करोगे, उसके रीजंस जानोगे एंड देन यू विल मेक डिसीजंस टू इम्प्रूव इट. Next is types of business projection. Basically types of business projection is upon the duration. First one is yearly projection, the other one is monthly projection. It also includes MIS reports. Third one is cash flow projection, which includes cash inflow and outflow of cash. And the last one is long term projection. Long term projection is generally of 3 to 5 years. Then explaining into detail yearly projection. Yearly projection आपका current year का डेटा के ऊपर हम प्रोजेक्ट करते हैं कि नेक्स्ट ईयर आपका ग्रोथ है या कितना रेवेन्यू और प्रॉफिट हो सकता है. सपोज आपके इस साल का प्रॉफिट 10 करोड़ आया नेट प्रॉफिट एंड नेक्स्ट ईयर यू वांट टू अचीव 12.5 करोड़ प्रॉफिट. सो backed with perfect financial data you will project a whole year projection कि आपका सेल्स इतना होगा, उसके सामने आपका एक्सपेंस इतना होने का चाहिए, उसके सामने आप इतना प्रॉफिट बुक कर पाओगे. The next is a monthly projection or MIS report. Monthly projection में आप अपने monthly target fix करते हो and you see that whether you are actually achieving the targets or not. MIS report is also a very useful tool. MIS report में आपका कितने कितने expenses, कैश कहाँ कहाँ जा रहा है, उसका आपको एक डिटेल में नॉलेज होगा और उस बेसिस पे आप डिसीजन मेकिंग कर पाओगे. In cash flow projection we specifically focus on cash inflow and cash outflow. आपका जो लिक्विड कैश है वो कहाँ कहाँ आपके बिजनेस में अप्लाई हो रहा है और कहाँ उसका इफेक्ट क्या क्या आ रहा है वो हम कैश फ्लो में जानते हैं. और अगर कभी कैश क्रंच आने बिजनेस में कोई कैश क्रंच वाली टाइम आएगा तो आपका कैश फ्लो प्रोजेक्शन हेल्प करेगा ताकि आप कैश क्रंच अवॉइड कर सको. एंड एज फॉर द लॉन्ग टर्म 3 to 5 year business projection, it is up to like 5 years की आप एक ग्रोथ ट्रैक अपना बता रहे हो बिजनेस का कि 5 साल बाद आपका बिजनेस ऑलमोस्ट डबल प्रॉफिट जनरेट करेगा. ये एक बिजनेस प्रोजेक्शन होता है जो डेटा बेसिस पे होता है कि ईयर 1 में आपका इतना प्रॉफिट होगा, ईयर 2 में आप इतना प्रॉफिट करोगे, ईयर 3 में एंड सो ऑन टू द ईयर 5. नेक्स्ट इज एसेंशियल टूल्स फॉर बिजनेस प्रोजेक्शन. बिजनेस प्रोजेक्शंस के लिए टूल्स बहुत ही सिंपल है. सबसे फर्स्ट है विंडोज एक्सेल.
एक्सेल में आप फॉर्मूलाज ऑटोमेशन कर सकते हो, एक्सेल में आप डैशबोर्ड भी बना सकते हो, एंड एक्सेल इज वेरी फ्लेक्सिबल, सो मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस यूज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर देयर बिजनेस प्रोजेक्शन रिपोर्ट. The second is from where you will collect the data for business projection. It is from the accounting softwares where the business accounting is done, such as Tally. Third is high-tech ERP systems such as SAP and Oracle, which collect the real-time data, and on the basis of that you can prepare the MIS report or you can do a monthly projection. Fourth one is CRM tools. CRM tools include Salesforce, Zoho CRM, and HubSpot project. And CRM tools generally are useful for sales revenue and customer conversion ratios, कि आप इतना सेल्स जनरेट कर रहे हो और आपका कस्टमर सेल्स रेशियो सब इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, वो आपको पता चलेगा. थर्ड वन इज BI टूल्स. पावर BI एक बहुत ही यूजफुल टूल है और पावरफुल टूल्स है फॉर इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स. उसमें जो डैशबोर्ड होते हैं वो आप PPT में इंक्लूड करके एक अपने बिजनेस का प्रोजेक्शन और ग्रोथ प्रेजेंट कर सकते हो इन्वेस्टर के सामने. And third one is feasibility tools. Say last one. Feasibility tools are economic tools like break-even point and SWOT analysis. Break-even point is that कि break-even point एक ऐसा पॉइंट होता है कि आपका बिजनेस के जो भी सारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, एटलीस्ट आपका बिजनेस उतना प्रॉफिट जनरेट कर सके कि आपका वो बिजनेस के फिक्स्ड एक्सपेंसेस कवर हो जाए और बिजनेस लॉस में ना जाए. And SWOT analysis stands for strength, weakness, opportunity and threat. बिजनेस लीडर्स जनरली मेक डिसीजन बेसिस ऑफ द SWOT एनालिसिस कि उनके बिजनेस के स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उनके पास आगे क्या अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट है, उसका पूरा एनालिसिस करके बिजनेस डिसीजन मेकिंग होती है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज द पर्पस ऑफ अ बिजनेस प्रोजेक्शन. सो पर्पस ऑफ बिजनेस प्रोजेक्शन स्टार्ट्स विद फ्यूचर बिजनेस प्लानिंग. जैसा कि हमने पहले कहा था कि बिना प्लानिंग और बजटिंग के कोई भी बिजनेस सक्सीड नहीं कर सकता. इसको अगर एक लाइव एग्जांपल से देखें, जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है और उसने अपने पूरे साल का सप्लाई डिमांड का पैटर्न नोटिस करा था बिजनेस प्रोजेक्शन से, और उसे पता चला कि जुलाई से लेके अक्टूबर तक में हाई डिमांड है, तो वो उसके लिए कैसे प्रिपेयर रहेगा. नेक्स्ट ईयर वो मई से लेके जून तक में अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएगा, रॉ मटेरियल ज़्यादा प्रोक्योर करेगा और जो इंक्रीजिंग डिमांड है उसको मीट कर सकते हैं वैसा वेल इन एडवांस प्रिपेयर रहेगा. नेक्स्ट इज बेटर फाइनेंशियल डिसीजन. फाइनेंशियल डिसीजन बहुत क्रूशियल होते हैं कोई भी बिजनेस के लिए. सपोज आपको एक इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट इज अ रियली रिस्की टास्क फॉर अ बिजनेस. अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको सारा एक एनालिसिस करना पड़ेगा. एक एग्जांपल से अगर इसको समझा जाए कि आप स्टील पाइप मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में हो एंड यू आर प्रोड्यूसिंग सपोज 300 यूनिट्स पर मंथ दिस ईयर and you want to produce 400 units per month by the time next year. So how will you do it? And you have analyzed and made decision that we require some high tech machinery. High tech machinery में इन्वेस्ट करना पड़ेगा. अब आपके पास अगर एक डेटा ड्रिवन प्रोजेक्शन होगा तो आप ऑफकोर्स मशीन में मोर कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट कर पाओगे rather than a guess work. Second and the most important one is securing loan and investor funding. कोई भी बैंक लॉस मेकिंग बिजनेस को लोन फंड नहीं करेंगे कि उनका लोन भी रिफंड ना हो पाए या फिर इंटरेस्ट ना हो. अब आपका बिजनेस प्रोजेक्शन, अगर आपका बिजनेस ग्रोथ दिखा रहा होगा तो बैंक विल फील कॉन्फिडेंट टू ग्रांट यू लोन. एंड द सेम केस इज फॉर इन्वेस्टर. इन्वेस्टर कभी भी लॉस मेकिंग बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे. उन्हें चाहिए कि उनके इन्वेस्टमेंट में उन्हें एक अच्छा हेफ्टी रिटर्न मिले. सो अगर आपका बिजनेस एक प्रॉपर ग्रोथ रेट से ग्रो कर रहा होगा तो इन्वेस्टर्स विल फील प्रीटी मच कॉन्फिडेंट टू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस. नेक्स्ट वन इज अवॉइडिंग कैश फ्लो प्रॉब्लम. जैसा कि हमने कैश फ्लो प्रोजेक्शन में देखा था, अगर कैश आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है इनफ्लो करता तो एक सर्टेन पीरियड पे आपका बिजनेस में कैश क्रंच हो सकता है और उसके बेसिस पे बिजनेस ऑपरेटिंग कम हो सकती है, बंद भी हो सकती है. इसे अवॉइड करने के लिए बिजनेस प्रोजेक्शन बहुत यूजफुल होता है. अगर हम इसको फ्यूचर प्लानिंग के एग्जांपल से कनेक्ट करें, जिसमें था कि जुलाई से लेके अक्टूबर तक आपकी डिमांड ज़्यादा हो रही है तो मई और जून में आप ऑपरेटिंग यूनिट्स में ऑपरेशन ज़्यादा बढ़ाने वाला हो. अब ऑफकोर्स उसमें आप रॉ मटेरियल परचेज करोगे और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगे जिसमें कैश आउटफ्लो होगा. तो आप उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड रह सकते हो कि सपोज सप्लायर से आप एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड के लिए डिमांड कर सको ताकि आपके बिजनेस में कैश प्रॉब्लम ना आए. तो आप ये कब कर पाओगे? जब आपके पास एक प्रॉपर बिजनेस प्रोजेक्शन होगा नेक्स्ट ईयर का कि कैश क्रंच हो सकता है ऐसा. एंड द लास्ट पर्पस इज इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस एंड अकाउंटेबिलिटी. अब आपने इतना अच्छा बिजनेस प्रोजेक्शन करा है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए.
आपने जो टारगेट सेट किया था नेक्स्ट ईयर के लिए और उस ईयर में आप एक्चुअली वो टारगेट मीट कर पा रहे हो कि नहीं। अगर वो मीट नहीं कर पा रहे तो उसका रीजंस क्या है आप वो आइडेंटिफाई करेंगे और ट्राई करेंगे, स्ट्रेटेजीज डिसीजन मेकिंग करेंगे जिससे वो जो गैप्स है वो फुलफिल हो और आपका बिजनेस फिर से ग्रोथ ट्रैक पे आ जाए। एंड कंक्लूडिंग माय प्रेजेंटेशन, business projection is your compass for business success. You should plan it confidently as it is a data driven proper projection. So every business must do a business projection that will lead to their growth. Thank you.